Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in Neha classes. Yes, today's the topic is RNA and its function. What is the RNA? RNA is the ribonucleic acid. RNA is one of the major biological macromolecule that is essential for the all form of the life along with DNA and protein. This is the RNA. It is a part of the nucleic acid. Nucleic acid. What is the nucleic acid? Nucleic acid are the polymers of the nucleotides. They include DNA and RNA. Yes, today's the topic is RNA. And what is the nucleotide and nucleoside? Nucleotide contain the nitrogenous base, pentose sugars and phosphate group. What is the nitrogenous base? Purine and pyrimidine. Pentose sugars are the ribose and deoxyribose. Yes. And what is the difference between nucleotide and nucleosides? Nucleotides contain nitrogenous base, pentose and phosphate, but nucleoside is nucleotide plus phosphate group. Means same as nucleotide, but only phosphate group is not attached in the nucleoside. This is the basic difference. Yes, in short we can say nucleoside plus phosphate is the nucleotide. In this unit, in this chapter, in this topic we will discuss nucleic acid, nucleotide, nucleoside, nitrogenous base and pentose sugar. And what about the RNA? In RNA I will show you introduction, structure, different type and function, and the last one is the conclusion. What is the nucleic acid? Nucleic acid are the polymer of nucleotides. They include the DNA and RNA which found in the all living system. This is the nucleic acid and this one is nucleotide. Nucleotide is composed with the nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group. And nucleoside हो गया. Nucleoside is except the phosphate group. When nucleoside attached with the phosphate, then it form the nucleotide. And nitrogenous base, pyrimidine and purine in short में. Then what is the pyrimidine bases? Cytosine, thymine, uracil, and purine is the adenine and guanine. Structure of RNA, backbone of the sugar and the phosphate group. Nitrogenous base is linked with the sugar moiety. In structure we have already discussed in DNA. What is the sugar moiety in phosphate? It is attached to the 3' hydroxy group. Yes. Nitrogenous bases are linked with the phosphate sugar and through the N-glycosidic linkage to form the nucleoside. अब न्यूक्लियोसाइड बन चुका है. जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होगा तब न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा. फॉस्फेट ग्रुप किससे लिंक होता है? 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप से. किस पर? विद द हेल्प ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. 2 न्यूक्लियोटाइड्स इज जॉइंड टुगेदर विथ ईच अदर टू 3 to 5 phosphodiester linkage to form the dinucleotides. This is the structure and more such group. इसी तरह और भी सारे जो ग्रुप्स हैं वो अटैच होते चले जाएंगे और क्या बनाएंगे? पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन. सच ए पॉलीमर हैज़ ए फ्री फॉस्फेट मोइटी. अब जैसे पॉलीमर्स की बात करें तो उन पर एक फ्री फॉस्फेट की मोइटी होती है. किस प्राइम पर? 5 अटैचमेंट पर. 5 प्राइम एंड ऑफ द राइबोस शुगर. इसको हम क्या कहते हैं? एंड इट इज कॉल्ड द 5 एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. इन अदर हैंड क्योंकि ये जुड़ा हुआ है 5 to 3 प्राइम, तो 5 प्राइम से तो क्या होगा? फ्री फॉस्फेट मोइटी से जुड़ा हुआ है जिसको हमने अभी बात की थी, पढ़ा था, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से. और दूसरे हैंड पर क्या है? राइबोस किससे जुड़ा हुआ है? 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सी ग्रुप से. उसको हम बोलेंगे 3 प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. इस जो ये 3 के ऊपर अटैच है, 5 के ऊपर अटैच है, इसको बोलते हैं प्राइम. इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड हैज ए एडिशनल OH ग्रुप. देखिए हम जब आरएनए और डीएनए का डिफरेंसेस पढ़ते तो उसमें यही होता है कि हर न्यूक्लियोटाइड पर एक एडिशनल ग्रुप होता है, सेकेंड पोजिशन ऑफ द राइबोस. दिस इज द डिफरेंस ऑफ द आरएनए एंड डीएनए. अब बात करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज द मेजर बायोमोलिक्यूल्स दैट आर एसेंशियल फॉर द ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ. आरएनए जो अपने बायोलॉजिकल का मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो इसेंशियल है किसके लिए? हमारी लाइफ के लिए. जो क्या करेगा? डीएनए से तो टेम्पलेट लेगा और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा.
ईच न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए कंटेन द राइबो शुगर। एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो हमने एक इमेज में देखा, एक स्लाइड के अंदर देखा कि अटैच किस किस से हुआ है, राइबो शुगर से, ठीक है, बेसिस से और अपने पेंटोज शुगर से। तो देखा एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायनिन इसकी अटैच होगा, ठीक है। अब अपन स्ट्रक्चर की बात करें, आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो यदि हम इसको इमेजेस में देखें तो देखिए ये अटैचमेंट है। एडेनिन कहाँ अटैच है, ग्वानिन कहाँ अटैच है, साइटोसिन एंड यूरेसिल कहाँ कहाँ अटैच है। अब देखिए ये अपना शुगर हो गया, ये अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया जिस पर अपना, और ये अपने बेसिस हो गए। तो हमने यहाँ देखा था कि बेस पे जुड़ा हुआ है ये सारे बेसिस, और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से ये दो अटैच है, तो ये हो गया अपना फॉस्फेट ग्रुप। तो ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। यदि हम स्ट्रक्चर से बात करें तो यहाँ पर ये अटैच होते हुए चले जाएंगे किससे, अपने राइबो शुगर से, अपने क्या चीज़, पिरिमिडिन और प्यूरिन बेसिस। यदि सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस में क्या है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज यूजुअली कैटलाइज बाय द एंजाइम आर। अब हमको इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या याद रखना है कि जो सिंथेसिस है आरएनए का वो किससे बनेगा। जब हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तब भी ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अब आरएनए सिंथेसिस कैसे होगा, हमें यूजिंग करना होगा डीएनए को एज ए टेम्पलेट। अभी हमने बात की टेम्पलेट का मतलब जैसे अपन कुछ भी बनाते हैं हमें एक माउल्ड की ज़रूरत होती है, तो हम इसको बोल सकते हैं एक पैटर्न की रिक्वायरमेंट होती है। सेम ऐसे ही टेम्पलेट क्या है, एक पैटर्न है जो क्या करेगा, जनरेशन ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल। क्या चीज़ है अनदर मॉलिक्यूल, अपना आरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। These are the also number of RNA dependent RNA polymerase। ये बोल रहा है कि अलग अलग तरीके के अलग अलग RNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं आरएनए को एज ए टेम्पलेट के फॉर्म में, और क्या करते हैं, न्यू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बनाते हैं। हमें पहला आरएनए तो कहाँ से मिल गया, डीएनए से, एज ए टेम्पलेट मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने पास अब आरएनए प्रेजेंट है, अब हमें न्यू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बनाना है, तो क्या होगा, अलग अलग तरीके के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं जो एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे, एक पैटर्न प्रोवाइड करेंगे जो न्यू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बनाने के लिए। ए नंबर ऑफ द आरएनए वायरसेस, हमने देखा था कल कि वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स कैसे ट्रांसफर होगा, आरएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स एज ए आरएनए फॉर्म में होगा। और एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पर, कौन से वायरस का, पोलियो वायरस का, जो क्या करता है, यूज दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स टू रेप्लिकेट देयर जेनेटिक मटेरियल। किस टाइप ऑफ द एंजाइम है ये है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ द वायरल। अब हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स आर हेयर, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो टीआरएनए स्ट्रक्चर में होता है, आरआरएनए स्ट्रक्चर में होता है और एमआरएनए इस स्ट्रक्चर में होता है। यस, ये दिस इज द स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं वन बाई वन की स्ट्रक्चर्स को हम बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि एमआरएनए होता क्या है। एमआरएनए कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोटीन सीक्वेंस इन द राइबोसोम। प्रोटीन्स हम बोल सकते हैं इट इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्रीज इन द सेल, तो इस प्रोटीन फैक्ट्री हम बोल सकते हैं। अब इसको क्या बोल रहा है कि इट इज़ कोडेड 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ऐसे कोडोन। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि है हर के में 3 न्यूक्लियोटाइड से ये कोडोन होता है इन यूकेरियोटिक। अब अपनी बात आ गई यूकेरियोटिक्स की, मैमेलियन सेल्स की। यूकेरियोटिक के अंदर क्या बोलता है कि 1 प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, हमें एक प्रिकर्सर चाहिए एमआरएनए का, हैज़ बिन ट्रांसक्राइब, जो हमें कहाँ से मिला था, डीएनए से ट्रांसक्राइब हुआ था। और ये क्या करेगा, इट इज़ प्रोसेस टू मैच्योर एमआरएनए। अब आगे क्या होगा, हमें एक एमआरएनए मिल गया, वो कहाँ से मिला, डीएनए से एक टेम्पलेट मिल गई। अब ये सारे एमआरएनए मैच्योर होके अब अपने सारे प्रोसेस करेगा, जो दूसरे एमआरएनए बनाना है वो बनाएगा। दिस रिमूव इट्स इंट्रॉन को बोलते हैं नॉन कोडिंग सेक्शन, जो क्या होता है, प्री एमआरएनए बनाने से पहले प्री एमआरएनए होता है जो एक ऐसे टेम्पलेट होता है।
जब अपना मैच्योर mRNA हो गया, अपन को जो mRNA चाहिए था वो मिल गया, तब क्या होगा, mRNA इज रिमूव। जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फंक्शन नहीं, वो इसे रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द इंट्रॉन। इंट्रॉन किसको बोलते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को। द mRNA इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। mRNA कैसे एक्सपोर्ट होगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। एक्सपोर्ट मतलब ट्रांसफर, जिसको हम tRNA भी बोलते हैं। यस, एक्सपोर्ट की बात आ गई, ट्रांसफर की बात आ गई, तो किस आरएनए की हम बात करेंगे, tRNA के। वेयर इट इज बाउंड टू राइबोसोम। जब mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होगा तो ये क्या करेगा, वहाँ पर राइबोसोम से बाउंड हो जाएगा और ये ट्रांसलेट कर लेगा प्रोटीन में, जिसको हम क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ द tRNA। बात आ गई tRNA की, दिस इज द mRNA। अब अपन बात कर लेते हैं tRNA की या फिर rRNA की, किसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। राइबोसोमल आरएनए क्या चीज़ है, इट इज द कैटालाइटिक कंपोनेंट। जब अभी हम क्लासिफिकेशन, जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, तो इसमें अलग अलग किया है कि कौन सा आरएनए ऐसे कैटालाइटिक वर्क करेगा, कौन सा आरएनए से मेन फंक्शंस में ऐड करेगा। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैव द 4 डिफरेंट आरएनए। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम मतलब मैमल्स, मतलब ह्यूमन, इन सारे आरएनए उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये बोल रहा है कि जो 4 आरएनए डिफरेंट प्रेजेंट है, जिसके अंदर 3 आरएनए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो न्यूक्लियोलस से स्टार्ट, वो सिंथेसिस होते हैं, और एक है वो कहीं से भी सिंथेसिस हो जाएगा एल्सवेयर। इन द साइटोप्लाज्म राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन कंबाइंड फॉर्म ए न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या करेगा, साइटोप्लाज्म से राइबोसोमल आरएनए अटैच होगा और न्यूक्लियोप्रोटीन बनाएगा, जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम इसको कहते हैं। अब आगे बात की तो राइबोसोम क्या करेगा, mRNA से बाइंड करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेडी कर देगा और कैरी आउट द प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल राइबोसोम्स मे बी अटैच टू द सिंगल mRNA। बहुत सारे राइबोसोम से वो अटैच होते हैं सिंगल mRNA से एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर। ओके, नियरली ऑल द आरएनए फाउंड इन द टिपिकल यूकैरियोटिक्स इज rRNA। कहते हैं सभी में आरएनए प्रेजेंट होता है, बस एक कुछ टिपिकल यूकैरियोटिक्स की बात करें जहाँ पर या ये फाउंड होता है, ठीक है, rRNA। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपना tRNA, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, एक स्मॉल आरएनए चेन होती है। कितनी स्मॉल आरएनए चेन है, 80 न्यूक्लियोटाइड्स। हमको पता है कि बहुत लॉन्ग वास्ट चेन है, पर tRNA की बात करें तो एक स्मॉल आरएनए चेन है जिसमें कितने होते हैं, अप्रॉक्स 80 न्यूक्लियोटाइड्स। इट ट्रांसफर द स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स टू ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन टू द राइबोसोमल साइट्स प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग। अब जब ट्रांसलेशन के टाइम पे जब प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा तब ये क्या करेगा, इसका नाम है टी, मतलब ट्रांसफर आरएनए। तो कुछ स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड्स है, जो बढ़ रही हैं, ये जो धीरे धीरे पॉलीपेप्टाइड्स जो बढ़ रही हैं, इस पर क्या करेगा, एक स्पेसिफिक एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा, जिससे क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। किस टाइम पे, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। इट हैज ए साइट फॉर द एमिनो एसिड अटैचमेंट्स एंड एंटीकोडोन रीजन फॉर द। देखिए, एक तो हम बोल रहे हैं एंटीकोडोन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये 5 to 3 प्राइम्स है, पर ये जब एंटीकोडोन की बात करें तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक साइट ऐसा होता है जो हमें एंटीकोडोन रीजन प्रोवाइड कराता है और क्या करता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस। हमारा मेन क्या था, डीएनए टेम्पलेट से हमें मैसेंजर आरएनए मिला। मैसेंजर आरएनए जब अपना मैच्योर हो गया तो वही हम एज ए टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। तो बोलता है कि एक स्पेशल कोडोन रीजन है जहाँ पर क्या करेगा, एक mRNA अटैच होगा थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज द tRNA। अब अपन नेक्स्ट की बात करें कैसे, और नेक्स्ट है अपना डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब अपनी इतनी सब बात की कि कैसे वो टेम्पलेट ले रहा है, कैसे वो अपना सिंगल बना रहा है, मैच्योर करेगा, तो वो अब आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म के रूप में दिखाते हैं। दिस इज द डीएनए टेम्पलेट्स। डीएनए टेम्पलेट्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ट्रांसक्रिप्शन क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बुलाएगा, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर मैसेंजर आरएनए का हम फॉर्मेशन आपको दिखा रहे हैं, कैसे मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसके बाद जो भी अपन को आरएनए चाहिएंगे वो हमें मिल जाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इस टेम्पलेट स्टैंड, इट स्टैंड इन द ब्लू। देखो ये वाला ब्लू,
हमें जो चाहिएगा वो ब्लू वाला चाहिएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि ब्लू अटैच होगा, द स्टैंड इज इन ब्लू, जो ये वाला अटैच है, फॉर्मेशन ऑफ एसेंजर है, जो क्या बोलता है कि इस इट इज इन ब्लू। ये क्या करेगा, द 3' to 5' स्टैंड को एज ए टेम्पलेट स्टैंड लेगा। द RNA पॉलीमरेज, अब ये वो अपने जो एंजाइम की बात की थी वो आ गई, पॉलीमरेज एंजाइम से ट्रांसक्राइब द इंफॉर्मेशन इन दिस स्टैंड। अब इस वाले स्टैंड से वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब करेगा। ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन ए बिकम, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिए, जब ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर ए बन जाएगा यू, मतलब एडेनिन इज कन्वर्टेड इन द यूरेसिल, थाइमिन इज कन्वर्टेड टू द एडेनिन, ग्वानिन इज बिकम द सी मतलब साइटोसिन एंड सी बिकम द ई। अब यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसने अपने क्या चीज़ें चेंज की, टेम्पलेट स्ट्रैंड चेंज किया, ठीक है। तो क्या हुआ, ए बन गया यू, एडेनिन बन गया यूरेसिल, थाइमिन बन गया एडेनिन, ग्वानिन बन गया साइटोसिन और साइटोसिन बन गया ग्वानिन। दिस इज द मैसेंजर RNA स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट की बात करें कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया, mRNA, tRNA और rRNA। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं SNRNA, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर RNA। SNRNA क्या होता है, इसके अंदर इंट्रॉन्स है। जब अपने स्मॉल RNA बन गए तो ये इंट्रॉन्स जो नॉन कोडिंग पार्ट्स है वो रिमूव हो जाएगा, जो अभी अपन ने बात की थी। SNRNA क्या चीज़ होगा, इट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग। स्प्लिसिंग का मतलब होता है ज्वाइन और कनेक्ट, मतलब एक रोप होती है एक बड़ी सारी, उसमें क्या होगा, बाय द इंटरवीविंग विस्टेंस एट द एंड, यस दिस इज द स्प्लिसिंग। अब ये क्या करेगा, इसको जोड़ना कैसे, ये सब मिलेंगे कैसे आपस में, जो क्या चीज़ है, प्री mRNA से। अभी हमने बात की थी एक प्री mRNA हमें मिलता है, उसी से दूसरे mRNA हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें SNRNA बनाना है। SNRNA कैसे बनेगा, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग, इंट्रॉन रिमूवल। जब ये जुड़ जाएंगे, जब ये बन जाएंगे, इसको जोड़ने के लिए, इसको लाने के लिए, बनाने के लिए हमने एक इंट्रॉन का हेल्प लिया, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। जब इसने काम किया तब अपने क्या किया, मैच्योर RNA हमें मिला और इंट्रॉन्स क्या हो गया, रिमूव हो गया, और अपन को SNA मतलब स्मॉल न्यूक्लियर RNA हमें मिल गए। जो ये SNRNA है, टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस विद द प्रोटीन टू फॉर्म द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल इज नॉन एज SNRMP। पी क्या चीज़ है, ये पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। अब माइक्रो RNA पढ़ लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा माइक्रो RNA, जिसको हम miRNA बोलते हैं। अब देखिए miRNA क्या करता है, देखिए हमारा नेक्स्ट अपना स्टेप क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस। पर mRNA क्या करेंगे, ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है वहाँ से अटैच होकर इस प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देंगे। इसका काम है, ये रेगुलेटर्स हैं। कैसे वर्क करेंगे, अब इसको एक लैंग्वेज में समझिए। DNA से हमें यहाँ पे RNA का एक टेम्पलेट मिला, जो ये स्मॉल माइक्रो RNA है, ये क्या करेंगे, ऑल लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, पर ये क्या करेंगे, ह्यूमन जीन्स के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA है वहाँ पर जाके ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्या होगा, ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बन रहा था वो सिंथेसिस है। देखिए RNA एंड द प्रिवेंटिंग देयर ट्रांसलेशन इनटू द प्रोटीन, और ये क्या कर देंगे, mRNA प्रिवेंट कर देंगे इस प्रोटीन को, ट्रांसलेशन को। दिस इज द रेगुलेटर RNA, माइक्रो RNA भी बोलते हैं। अब इसको अपन शॉर्ट में समझते हैं, mRNA क्या बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट नॉन कोडिंग mRNA भी बोल सकते हैं, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। इट इज रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द हाफ ऑफ द ह्यूमन जीन्स। क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ द ह्यूमन जीन्स में एज ए रेगुलेटर्स का काम करता है। हाउ, दिस सिंगल स्टैंडर्ड RNA exert their regulatory action by the binding। बाइंडिंग किससे करेगा, ये मैसेंजर RNA से बाइंडिंग किया। अब बाइंडिंग से क्या होगा, प्रिवेंटिंग देयर ट्रांसलेशन इनटू द प्रोटीन। अब प्रिवेंटिंग देयर ट्रांसलेशन इनटू द प्रोटीन में ट्रांसलेशन जो हो रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा। दिस इज द माइक्रो RNA, इसको हम miRNA बोले। स्मॉल न्यूक्लियर पढ़ा, माइक्रो RNA पढ़ा। अब siRNA देखते हैं हम क्या चीज़ है। siRNA को बोलते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग, नाम से ही पता चल रहा है इंटरफेयर कर रहा है इसी में। स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA जो 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स, यस, लॉन्ग डबल चेन RNA होती है, यस। अब दिस न्यूक्लियो RNA मॉलिक्यूल हैव द वेराइटी ऑफ रोल इन द सेल। ये जो RNA है इनका भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंस है। क्या चीज़ है ये, एज ए
वैरायटी ऑफ रोल करता है सेल के अंदर। कैसे करता है? इन्वॉल्व किस में करेगा? आरएनए इंटरफेरेंस, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, इसका नाम ही है। तो इंटरफेरेंस कैसे करेगा ये? कि जो भी बनेगा पाथवे, उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है स्पेसिफिक जीन का, हमें पता है जीन्स का जो इस एक सीक्वेंस है, एक एक्सप्रेशन है, उसमें क्या करेगा? प्रिवेंट करके, इंटरफेयर करके हाइब्रिडाइज कर देगा एक न्यू सीक्वेंस आरएनए को। ठीक है, न्यू सीक्वेंस आरएनए को हाइब्रिडाइज कर देगा और किस पर करेगा? एक टारगेट एमआरएनए पर। देन दिस इज एक्टिवेट द डिग्रेडिंग एमआरएनए, और ये जब जैसे ही वो एक्टिवेट हो गया एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा। वंस द टारगेट एमआरएनए इज डिग्रेड, इसका टारगेट एमआरएनए का काम है मैसेंजर आरएनए पर टारगेट किया, मैसेंजर आरएनए को ने डिग्रेड किया। अब क्या बोल रहा है? अब ये ट्रांसलेट किस में नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट? प्रोटीन में। इट इज कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन। अब ट्रांसलेट में प्रोटीन नहीं होगा। देखिए नॉर्मल एसएनआर डीएनए, यहाँ पर इसने एसआईआर डीएनए को क्या किया? जो नॉर्मल है वो हाइब्रिडाइज कर दिया दूसरे के साथ। जब यहाँ पर अब क्या हो गया? एमआरएनए है वो यहाँ से क्लीव हो गया, और मैसेंजर आरएनए जब अलग हो गया तब इसने क्या? ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए होता है। तब अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, जिसको बोलते हैं हम एसआईआरएनए। अब दूसरा आरएनए क्या होता है? गाइड आरएनए। जैसे इसका नाम गाइड है तो ये क्या करेगा? एक मैचिंग सीक्वेंस प्रोवाइड कराएगा। इसके नेम के अकॉर्डिंग, सारे हमारे नेम के अकॉर्डिंग है, बस थोड़ा सा इसको डिटेल में समझना है। गाइड आरएनए का मतलब है कि आरएनए जीन्स दैट फंक्शन इन द आरएनए एडिटिंग। बात आ गई आरएनए एडिटिंग की। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? एमआरएनए टू गाइड द एमआरएनए मॉडिफिकेशन। आप इस कर्सर और इस नोट पर ध्यान रखें। क्या बोल रहा है ये? कि गाइड का क्या काम है? गाइड क्या करेगा? एमआरएनए मॉडिफिकेशन में। हम आपको किसी को भी कोई गाइडेंस करते हैं तो उसमें उसका माइंड चेंज होता है, मॉडिफिकेशन होता है। सेम यहाँ हेयर है, आरएनए जीन्स दैट फंक्शंस आरएनए एडिटिंग फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है इंसर्टिंग और डिलीटिंग। देखिए एडिटिंग का अपन जिस भी कंप्यूटर में कुछ भी एडिट करते हैं तो या तो हम इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं। सेम हियर, इंसर्टिंग और डिलीटिंग स्ट्रेचेस ऑफ यूरिडाइलेट्स, मतलब यूरिडिन वाले जो सीक्वेंसेस उनको डिलीट करता है। द जी आरएनए किसको बोलते हैं? गाइड आरएनए को। इट इज द पार्ट ऑफ द एडिटोसोम एंड द कंटेन सीक्वेंस ऑफ द हाइब्रिडाइज द मैचिंग सीक्वेंस। अब क्या करेगा? ये मैचिंग सीक्वेंस को हाइब्रिडाइज कर देगा और जिससे क्या होगा? अपने एमआरएनए मॉडिफाई हो जाएगा। दिस इज द गाइड आरएनए। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की बात की। हम सबको पता है कि क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, एक सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा। पर अपन ने बात की थी कि वायरल में, जो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल्स कौन ट्रांसफर करता है? आरएनए। बट ह्यूमस यूकैरियोटिक की बात करें तो डीएनए। अब कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, यहाँ पर सीआरएनए, हम वायरस डीएनए की बात करें। वायरल आरएनए इज अ ट्रांसक्राइब फ्रॉम द नेगेटिव सेंस आरएनए एंड सर्व एज द टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस को एज ए टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा। नेगेटिव सेंस आरएनए क्या होता है? इट इज अ वायरल आरएनए, ए बेस सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हम सबको पता है कि एक डीएनए से रेप्लिकेट होना, डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करना, फॉर्मेशन करना। सर्व एज द टेम्पलेट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वायरल कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। बात हुई, ट्रांसक्रिप्शन में भी काम किया, एज ए टेम्पलेट प्रोटीन सिंथेसिस में भी प्रोवाइड किया। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। अब हम बात करें अलग अलग फंक्शंस की, तो एमआरएनए का क्या फंक्शन है? टीआरएनए का, आरआरएनए का। तो एमआरएनए का फंक्शन है कि इट कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और राइबोस इन द जेनेटिक। जो आगे हमने सबको डिटेल में पढ़ा उन्हीं के बेसिस पे इनके फंक्शंस है। अब एमआरएनए क्या कर रहा था? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एज ए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से ले रहा था। टीआरएनए क्या बोल रहा है? ये एक्ट एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल। ट्रांसफर का मतलब, टी का मतलब ट्रांसफर, तो एडेप्टर मॉलिक्यूल इसको बोला जाता है। क्या करता है? ये एमिनो एसिड को कैरी करता है और कहाँ पर ड्रॉप कर देता है? इसका काम है ट्रांसफर करना। तो वहाँ से तो कैरी किया, कहाँ पे ड्रॉप कर दिया? पर्टिकुलर लोकेशन पर, जहाँ हमें चाहिए, पर्टिकुलर लोकेशन पर। फॉर किसके लिए? कोडोन के लिए और एमआरएनए के लिए
फॉर द हैविंग एंटीकोडोन। आप देखो हमने याद की कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, एक तो अपना राइट हैंडेड है, देन वापस नीचे से जाएगा तब भी वो बोल रहा है कि कोडोन के साथ हमें एंटी कोडोन भी चाहिएगा, जब ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। सेम हियर टीआरएनए का काम क्या कर रहा है, एमिनो एसिड को ले रहा है, ड्रॉप कर रहा है पर्टिकुलर किस पर, लोकेशन पर, किस लिए, फॉर द रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द कोडोन और एमआरएनए के लिए। अब आरआरएनए की बात करें, राइबोसोमल आरएनए की बात करें, इट इज कॉम्प्लेक्स विद द प्रोटीन, प्रोटीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फॉर्म द राइबोसोमल सब यूनिट्स। अभी हमने बात की थी 4 तरह के आरएनए थे, याद कीजिए। तो 4 आरएनए में हमारे बॉडी के अंदर ही होते हैं, वो सब चीज़ें बोल रहा है कि राइबोसोमल सब यूनिट्स होती हैं विच प्रोवाइड द स्पेस फॉर द प्रोटीन। और ये क्या करती है, आरआरएनए राइबोसोमस एटीएस 30S आपने देखा हुआ है, ये क्या चीज़ें करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्पेस प्रोवाइड कराती है। एंड सिंगल राइबोसोमल आरएनए ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट्स, जो सिंगल राइबोसोमस आरएनए है उनकी छोटी छोटी यूनिट्स क्या करती है, एक करेक्ट ओरिएंटेशन देती है, एक करेक्ट ओरिएंटेशन देती है किसके लिए, एमआरएनए को, ड्यूरिंग द अटैचमेंट ऑफ पी और ए एक्सिस, जो हमने कल पढ़ा था इस एक्सिस पर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट की बात करें कि फंक्शन में और जो दूसरे सारे पढ़े हैं उनकी हम सबकी बात करते हैं। एहसान एरा ने पढ़ा था स्मॉल न्यूक्लियर, वो क्या बोल रहा था कि यूकैरियोटिक्स में क्या रोल प्ले करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूकैरियोटिक्स हम सबको पता है बाय द स्प्लिसिंग। एसएनआरएनए में हमने क्या पढ़ा था, इंट्रॉन्स को तो रिमूवल कर रहा है और जॉइन स्प्लिसिंग का मतलब जॉइन कर रहा है एक्सॉन से, और स्नप्स क्या चीज़ है, U1 U2 U3 इसी के ही सब टाइप्स हैं। एससीआरएनए क्या चीज़ है, ये बीइंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सिंगल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स। एसआरपी क्या करता है, ये टारगेट करता है सेक्रेटरी प्रोटीन्स के अंदर, टारगेटिंग करता है। एसएनओआरएनए क्या चीज़ है, इट इज प्ले रोल इन द साइलेंसिंग। एमआईआरएनए क्या चीज़ है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द साइलेंसिंग बाय द ब्लॉकिंग ऑफ द एमआरएनए। और एमआईआरएनए का हमने देखा था इनहिबिटर्स, तो इसका मतलब ही क्या बोल रहा है कि ब्लॉकिंग करता है और ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। दिस इज द एमआईआरएनए। अब अपन ने एसआईआरएनए पढ़ा था, जीआरएनए, कैटालाइटिक आरएनए, एआरएनए, इसके अंदर क्या चीज़ है, ये एसआईआरएनए की बात करते हैं हम। स्मॉल इनहिबिटर्स, तो ये भी क्या करता है, रोल किस में प्ले करता है, इंटरफेयरिंग कर देता है। ठीक है, एस आई का मतलब जहाँ इनहिबिटर्स आता है वहाँ पर ब्लॉकिंग का। जीआरएनए क्या चीज़ है, गाइडिंग। अब ये क्या करता है, आरएनए एडिटिंग, जो हमने आगे पढ़ा उसी को शॉर्ट में हम एज ए फंक्शन लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जो आपको वहाँ पर टाइप्स याद कर रहे हैं सिर्फ उतना ही लिख दे। यदि आपको एग्जाम में याद भी नहीं रहे तो हमने जो टाइप्स पढ़े सारे, एमआरएनए, आरआरएनए, एसआईआरएनए, यस, गाइड आरएनए, कैटालाइटिक आरएनए, ऐसे जो जो पढ़े थे हमने वो यहाँ पर एज ए फंक्शन में भी लिख देंगे एज अकॉर्डिंग टू देयर नेम। कैटालाइटिक आरएनए क्या बोलता है, राइबोसोम्स एक्ट एज ए प्रोटीन एंजाइम फॉर द कैटालाइजिंग, कैटाबोलिज्म हम सबको पता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, इंट्रॉन को रिमूवल करेगा। इंट्रॉन हम सबको पता है क्या चीज़ है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, और पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा। एआरएनए क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियली आरएनए। आर्टिफिशियली आरएनए का मतलब होता है ब्लॉक द ट्रांसलेशन ऑफ पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ सम हार्मफुल प्रोटीन। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हार्मफुल है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं उनके ट्रांसलेशंस को। ये इसका इंपॉर्टेंट बात हुई। अलग अलग टाइप्स के अलग अलग तरीके फंक्शंस हैं जो हमने नेम्स के अकॉर्डिंग पढ़ा। एमआरएनए क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, सबको शॉर्ट में बताया। आरआरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है। टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है। एचएनआरएनए क्या करता है कि प्रीकर्सर एंड इंटरमीडिएट ऑफ मैच्योर आरएनए और अदर आरएनए को। एससीआरएनए क्या करता है, सिग्नल, एस का मतलब सिग्नल का रिकॉग्निशन पार्टिकल। अब देखो कैटालाइटिक कौन कौन से हैं जो हमारे यहाँ हाईलाइटेड किए हुए, कैटालाइटिक वर्क, जहाँ पर ब्लॉकिंग, जहाँ पर हम ब्रेकिंग हो रही है, जहाँ पर इंट्रॉन्स को अलग अलग किया जा रहा है। ठीक है, अब एसएनआरएनए और एसएनओआरएनए क्या चीज़ है, स्मॉल न्यूक्लियर ही है और क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर में पॉली ए एडिशन और आरएनए मैच्योर मिथाइलेशन।
रेगुलेटरी आरएनए जिसको मेसाई आरएनए mRNA कहते हैं, ये रेगुलेशन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का. दिस इज टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन द कमेंट. थैंक यू सो मच.